ब्रेक तो बाद फिर तो थोड़ा स्वागत है तो तुसी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी और प्रोग्राम पेश कर रहे हैं विजन प्राइम टाइम शो सोमवार तो लैके वीरवार तक 7 ਤੋਂ 8 ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ और ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਿਲੱਖਣ और ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀਏ और ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਨੀ ਖੁਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ ਕਸ਼ਯਪ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल नॉर्मल होइए ਤਾਂ ये बिल्कुल उस तरह का सवाल हो गया कि हम रोज़ नहाते हैं रोज़ ही नहाना पड़ता है राइट जी जी तो दांतों का भी उसी तरह से है कोई चीज़ अगर अच्छी कंडीशन में है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको लेके स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं उसमें कोई बीमारियां नहीं है पर उसमें आगे भी बीमारियां ना हो इसको आपने टेक केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं तो एक अच्छी कंडीशन में हमारी अगर मुंह की हालत है तो आप उसको अच्छा ही मेंटेन करके रखें उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो ब्रशिंग है वो किस तरह की है वो दिन में 2 बार बहुत ज़रूरी है सुबह और रात को फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि दांतों के बीच में ब्रश हमारा नहीं जा पाता है तो फ्लॉस एक इंटरडेंटली 2 दांतों के बीच में अगर कोई भी खाना या कोई भी सिरा कुछ भी फंसा हुआ है तो उसकी एक सफाई हो जाती है एंड फिर एंड में माउथ वॉश जो कि आपके मुंह में जितना बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको बहुत टाइम तक कम कर देता है एंड बहुत ज़रूरी है कि माउथ वॉश यूज़ करने के बाद आप तकरीबन 20 से 30 मिनट तक पानी ना पिएं क्योंकि उससे उसका असर ख़त्म हो जाता है जी तो ये एक मेंटेनेंस थेरेपी है जो लोग ऑलरेडी हेल्दी में हैं जी ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ अब तो जो चेंजेस या अब आए हैं सभी डॉक्टर्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकते हैं जी। आप जाने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए अपने डॉक्टर्स से अपने क्लिनिक पे फ़ोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की तैयारी करी है क्या प्रिकॉशंस हैं क्या गाइडलाइंस हैं क्या वो धीरे धीरे उस तरह से अब ओपन हो रहे हैं मेरी नॉलेज में जहाँ तक चीज़ें हैं अब काफ़ी डेंटल ऑफिसेज खुल रहे हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ कुछ आप चीज़ें नई एक्सपीरियंस करेंगे जिसको हम न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं पर वो आपकी सेफ्टी के लिए है वो डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए है ताकि सभी एक सेफ कम्युनिटी में हम रह सकें ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਣਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਰਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? उसके लिए बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे जिन लोगों को अगर सेंसिटिविटी की समस्या है, जो ठंडा गर्म जिसको हम बोलते हैं, आप उसके लिए कोई भी एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर से बहुत ऊपर नीचे, जैसे बहुत ठंडा या बहुत गर्म आपने अवॉइड करना है। सेंसिटिविटी के कई कारण हो सकते हैं, पर अगर आप एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट खरीदेंगे, उसको आपने 2 से 4 मिनट लगा के छोड़ना होता है दांतों के ऊपर। उसके बाद आपने हल्के हाथ से ब्रश करना है। ब्रश आपने बहुत तेज़ से नहीं रगड़ना होता, तेज़ रगड़ने से दांत ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं। जो आप दांतों का हेल्दी लेयर होता है, आप उसको एब्रेड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जिन लोगों को शिकायत है कि उनके दांत पीले ज़्यादा रहते हैं और वो बहुत जल्दी वाइटनिंग वाले प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं डेंटल ऑफिसेज, वो अभी थोड़ा सा जिन खाने के तत्वों से हमें स्टेन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे हल्दी है और वाइन का इंटेक है, इन सब चीज़ों को, जो स्टेनिंग वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। या फिर लेने के बाद उसको राइट अवे आपने हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करना होता है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आप सादे पानी से एक बार कुल्ला ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं उसका पीएच किस तरीके का है, मुंह में हमारे उसी तरह से बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारे मुंह का एक टेस्ट है, जो मुंह का एक स्मेल है, और जो ओवरऑल आपका दांतों में कीड़ा लगने की जो क्षमता है, वो उस तरह से कंटिन्यू रहती है। अगर जो बुज़ुर्ग हैं जो डेंचर्स वगैरह पहनते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डेंचर्स को डेली क्लीन करें। उसको रात में पानी वाले एक बर्तन में या बॉक्स में रख कर सोएं। और डेंचर को क्लीन करने के साथ साथ, आप चाहे दांत नहीं है आपके मुंह में, पर मसूड़ों को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो आप एक माउथ वॉश से पूरे मुंह में एक बार रिंस ज़रूर करें। जो लोग क्राउन्स या ब्रिजेस जिनके हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है कि उनमें खाना ज़्यादा फंसने की प्रॉब्लम्स देखी जाती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंटरडेंटली फ्लॉस ज़रूर करें। मार्केट में बहुत सारे वाटर पिक अवेलेबल हैं। वाटर पिक एक तरह का मतलब गैजेट जैसा होता है। उसमें काफ़ी प्रेशर से पानी आता है, तो कुछ ऐसे एरियाज़ को भी वो वॉश ऑफ करता है जहाँ पे ब्रश या फ्लॉस या जैसे हमारा जो हेड है वो नहीं पहुँच पाता है। उसके अलावा खट्टे फल जो होते हैं, जिनमें विटामिन सी वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, संतरा हो गया, जहाँ इस तरह संतरा है, आंवला है, और मौसमी वगैरह होते हैं आपके, काफ़ी और फ्रूट्स भी होते हैं, उनकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। वो मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जिनको मसूड़ों में सूजन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो वो नहीं रहेंगी। और यही थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा लॉन्ग टर्म अगर प्रिवेलिंग चीज़ें हैं, अगर आपको दर्द है, तो अगर वो रात की बात है तो आप दवाई लेकर उस तरह से सोच सकते हैं, पर उसको इग्नोर करना नहीं सही रहता है, क्योंकि दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द एक तरह का बॉडी का रिस्पॉन्स है जो आपको आपकी बॉडी बता रही होती है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हो और हमें कोई पेन ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। जब हमें दर्द होता है तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसे दिखाइए। तो दर्द जैसी चीज़ों को आप ना घर पे छुपाएं, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने बताया, सभी लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करके सारे डेंटल ऑफिसेस खोल रहे हैं, एंड आप भी बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। यही न्यू नॉर्मल है और इसी के साथ आपने धीरे धीरे अडेप्ट करना है और ख़ुद को हेल्दी रखना है। ऐसा ना हो कि आप खुद को बचाने के लिए घर पे बैठे हैं, लेकिन घर पे बैठे बैठे कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर पनप रही हो जिसकी जो फिर बाद में बड़ा रूप ले ले। जी, मैं उधर ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ,
जो एक दांतों में स्मेल की समस्या है, वो उसका एक अलग अलग लेवल होता है कि किस स्टेज पे आप हैं। अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है तो कई बार जो लोग कम पानी पीते हैं या जिनको डायबिटीज़ है या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ उन चीज़ों का असर आता है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होता है। उसके अलावा जो आपके गम्स होते हैं वो मसूड़ों को इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कोई पौधा होता है गमले में, जी जी उसके चारों तरफ जो मिट्टी होती है वो उसको पकड़ दे रही होती है पौधे को। तो सेम आप उस पौधे को टूथ की तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपके मसूड़े होते हैं वो उस मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे जैसे उनके बीच में स्पेस आना शुरू होता है, गैप आना शुरू होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं और उनको हम पॉकेट्स बोलते हैं। तो जब वहाँ खाना फंसने लगता है, वहाँ आपके बैक्टीरियाज कॉलोनीज बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत लंबे समय तक एक आप महसूस कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, कुछ चीज़ें कराने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा होता है। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ करने से या दो चीज़ करने से या एक बार सफाई कराने से नहीं वो चीज़ें जाती हैं। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी हाइजीनिस्ट के पास जाते हैं, आप उनके पास बहुत कम समय के लिए होते हैं जी। 1 घंटा के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है, या आप 3 बार गए तो आपकी 3 घंटे की अपॉइंटमेंट हो गई। लेकिन अपने साथ, आप खुद के साथ आप रोज़ रहते हैं, तो जो आपको ट्रीटमेंट वहाँ से मिला जी, वो तो एक तरह का ग्रॉस डिब्राइडमेंट हो गया। जैसे बहुत मोटे मोटे रूप में उन्होंने चीज़ें कर दी और आपको दवाइयाँ दे दी ताकि जो एक स्टेज 100% पे था वो घटकर 30 पे आ जाए। लेकिन 30 से उसको 0 पे लाने के लिए एक घर पर आपकी क्या मेंटेनेंस है, आप किस तरह टेक केयर कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़रूरी होती है। उसमें आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितनी बार ब्रशिंग कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो चीज़ें, क्योंकि कोई भी जब बीमारी हमें होती है वो ओवरनाइट नहीं हो जाती जी, रातों रात कोई भी आपको ऐसी समस्या नहीं हो जाती। वो कॉन्टीन्यूसली आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तब वो आकर एक ऐसा रूप लेती है जहाँ पे आप सोचते हैं कि अब तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ करना सिर्फ? ब्रशिंग आपने 2 ही बार करनी होती है, मतलब सवेरे तो सवेरे को और शाम को। ब्रशेस का जो हेड होता है वो आप ध्यान रख सकते हैं कि कई बार जो हमारा अक्ल दाढ़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपका जो रेगुलर साइज़ का ब्रश है वो नहीं पहुँच पाता है। तो कई बार मसूड़े और दांतों के बीच में वहाँ पे भी गैप रह जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे हेड वाला ब्रश लें ताकि वो एरिया भी क्लीन हो सके। मैं उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहूँगी कि जब कोई बीमारी हमें ओवरनाइट नहीं होती है, लाइक एक रात में नहीं होती है, तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो ठीक भी एक रात में हो जाए। जब वो होने में टाइम लेती है तो वो ठीक होने में भी टाइम लेती है। तो डॉक्टर्स का जो एक कंप्लायंस है वो तो होता ही है, पर पेशेंट का एक कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ट्रीटमेंट लेकर आए हैं आपने ही उसको मेनटेन करना है, आपने ही आगे उसको लेके चलना है उस तरह से, तभी वो रिजल्ट्स आ पाते हैं। जी, एक कॉल ਲੈ ਲਈਏ ਅਮਾਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। जी डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एंटीबायोटिक ली थी तो उसके बाद उनको दर्द बंद हो गया। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जिस समय हम अवॉइड करते हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स, क्योंकि उस समय हम एक्सरे नहीं कर सकते हैं। एक्सरे में कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम ये उनको रेकमेंड करते हैं कि आप डिलीवरी के बाद जब आप कंफर्टेबल फील करें आप वापस आइए। एंटीबायोटिक्स देने का पर्पज़ उस समय पे ये होता है कि क्योंकि हम एक्सरे नहीं कर सकते तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। दवाइयाँ देने से
वहाँ का जो इन्फेक्शन होता है कुछ समय के लिए कंट्रोल हो जाता है। और वही बात पेन किलर्स देने से या एंटीबायोटिक्स देने से वो सिचुएशन, वो एक्यूट इन्फेक्शन एक आपका टल जाता है। जी। लेकिन वो दोबारा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस एरिया का जाकर एक बार एक एक्सरे ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर किसी एरिया में आपको एंटीबायोटिक लेने की अगर ज़रूरत पड़ी थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी इन्फेक्शन था। वो अब है नहीं है, बिना एक्सरे के उसको कह पाना बहुत मुश्किल है जी। तो इसीलिए अपनी संतुष्टि के लिए एक्सरेज ज़रूर कराएं, सो दैट एक क्लैरिटी मिलती है डॉक्टर्स को भी, और वो आपको आगे के लिए बता सकते हैं कि वो एरिया क्लीन है या उसके साथ वाले एक जगह पे कुछ पनप रहा है कि ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये जो समस्या है ये बहुत सारे हम उन लोगों में देखते हैं जो जिनकी जो क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं रेगुलर, वो आप कितने समय से आपने कराई है नहीं कराई है। अगर आपकी क्लीनिंग विद लेस देन 6 मंथ्स है तो सबसे पहले तो आपको एक क्लीनिंग कराने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा जो एक ग्रॉस डिब्राइडमेंट नहीं होता, क्योंकि जब हम डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट में जाते हैं हम देखते हैं कि हाइजीनिस्ट जो होते हैं वो बहुत हाई स्पीड वाले मशीन्स से क्लीनिंग कर रहे होते हैं, कई बार हैंड इंस्ट्रूमेंट से भी कर रहे होते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हम घर पे यूज़ नहीं करते हैं। तो जो आपका डिब्राइडमेंट या जो आप सफाई वहाँ करवाते हैं उससे जो आपका टफ प्लाक होता है वो हटता है, घर की ब्रशिंग से वो नहीं हट सकता है। तो अगर मसूड़ों के बीच में इस तरह का प्लाक डिपॉजिट है जो कि कैल्सिफाइड है, जो मतलब पत्थर का रूप ले चुका है, तो वो मसूड़े को सांस लेने में दिक्कत करता है, तो तब आपकी मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप अपनी सफाई ज़रूर कराएं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बॉडी में भी कोई चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में सूजन होती है, तो हमेशा इसको हम सफाई से लिंक नहीं कर सकते। बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज होते हैं, तो बिना देखे उस चीज़ को कह पाना डेंटल उसमें बहुत डिफिकल्ट है कि क्या आपकी कॉजेज रह सकते। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮੈਲ आनी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके दांतों का उस तरह से क्या होता है कि कई लोग जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, तो उनकी आप देखोगे तो उनमें दांतों में कीड़ा लगने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, जेनेटिक एक भी रोल प्ले करता है कि किसी कोई इतना मीठा खाता है कि उसको बिल्कुल कीड़ा नहीं होता है, कोई थोड़ा भी खाता है तो हर 6 मंथ्स में दे हैव टू गो फॉर अ कैविटी। सो एक आपकी इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक आपका जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हर किसी को ट्रीटमेंट भी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के टाइप को समझें कि हमारी दांतों में किस तरह की चीज़ें हम जल्दी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम एनकाउंटर करते हैं, उस तरह से हम ट्रीटमेंट करें। जी। सो ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਣ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल, मेरे अपने दादाजी ही वॉज 85 ईयर्स ओल्ड, उनकी 85 साल की उम्र थी और उनको कोई भी दांतों में ऐसी समस्या नहीं थी। और कई बार हम ऐसा ये भूल जाते हैं कि जो वो उस समय का खाना पीना था, वो लोग बहुत हाई फाइब्रस फूड जिसको डाइट बोलते हैं वो लेते थे। उस समय की डाइट को हम अब के समय से डाइट नहीं कंपेयर हम नहीं कर सकते। आजकल हम कितना सॉफ्ट फूड खाते हैं, कितना शुगर इनटेक करते हैं, तो उन लोगों का खाना इतना फाइब्रस होता था कि कई बार दांतों की में एक सेल्फ क्लेंजिंग एक्टिविटी होती है, वो खाना दांतों से चिपकता नहीं है, उसको और क्लेंज करता है, वो इतना हाई फाइब्रस खाते हैं।
उनके जो जॉ साइज होते हैं, जो आपके पहले के आपके दादाजी हैं या नाना जी, आप उनका जॉ साइज देखोगे तो उनके सारे के सारे दांत जो होते हैं 32 के 32 दांत आप उनके मुंह में देख सकते हो। आजकल हर तीसरे बच्चे को ब्रेसेस लगे होते हैं क्योंकि उसका जॉ साइज इतना छोटा होता है कि दांतों को निकलने की जगह ही नहीं होती है। तो ये हमारे एक आप अगेन लाइफस्टाइल फैक्टर की हम बात करें कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जितना अच्छा खाना और जितना फाइब्रस फूड जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, हम उस तरह की डाइट नहीं ले सकते और ना हमें वो डाइजेस्ट होती है। तो जब उस तरह की हमारी डाइट नहीं है तो उस तरह का रिजल्ट उन चीज़ों से एक्सपेक्ट करना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग रहा है। बहुत सारे चेंजेस हम ऐसे भी देखते हैं कि कई बार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो दांतों की इम्यूनिटी होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो ये सब डाइट का और आपकी जेनेटिक्स का इफेक्ट होता है। इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप दातून करते हैं या आप पर अभी आजकल बच्चे अगर दातून करें तो उनके मसूड़ों से खून आने लग जाएगा। जी। तो बॉडी उस तरह से नहीं रही है, काफ़ी डेलिकेट हो गई है, या हमने उस तरह से खुद को बना लिया है कि हम बहुत डेलिकेट हो गए हैं, उस तरह से स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं। गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, कोई गलत बात नहीं है, आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। पर अगेन ये सब चीज़ें तभी कारगर हैं अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं जी। अगर आप अनहेल्दी हैं, आपके कोई कैविटीज़ हैं, आपको गम डिजीजेज हैं, आपको टेढ़े मेढ़े दांतों की शिकायतें हैं, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। इफ़ यू नॉट कंसिडर्ड हेल्दी तो आप उन अप्रोचेस को नहीं ले सकते। तो एक मेंटेनेंस वाली चीज़ें अलग हो जाती हैं। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਟਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ PR ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹੀ ਨੁਸਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾयद ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ कारगर नहीं होंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहले तो फिटकरी आलम जिसको हम बोलते हैं, इसके कुल्ले और इसके कुछ भी इससे रिलेटेड मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमारे दांतों का सरफेस होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे बाहर वाला जो आप बहुत वाइट सरफेस देख रहे होते हैं उसको हम एनामल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। किसी चीज़ को ये सेंसिटिव नहीं होता है, ठंडे गर्म को, इसमें मीठा खट्टा कुछ नहीं लगता है। कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर तक इसकी लेयर होती है। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो डेंटिन होता है। डेंटिन सेंसिटिव होता है हर चीज़ को, हवा, मीठा, पानी, खट्टा, उसमें सभी कुछ लगता है। तो एक जब हमारे दांत आते हैं और चले जाने तक एक दांतों का नेचुरल प्रोसेस होता है वेयरिंग ऑफ का, मतलब उनके घिसने का। जब आप फिटकरी जैसे सब्सटेंस या फिर आप नमक और कुछ, कई बार मैंने सुना है कि हल्दी लगाकर भी मिक्स करके भी लोग हल्दी के सरों का तेल है ना। हाँ जी, बहुत सारे घरेलू नुस्खे करते हैं, लेकिन जो एक फिटकरी होती है उसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप मान लीजिए कि आप दांत का जो एक हेल्दी लेयर है आप उसको एब्रेड कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से। सो मान लीजिए कि अगर किसी दांत की लाइफ और 30 इयर्स है या 40 इयर्स है, आप ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करके उसको जल्दी वेयर ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी एक लाइफ ख़त्म हो रही है। फिर आगे जब आप अपने 40s में पहुंचते हैं या 45 में पहुंचते हैं तब आपको सारे दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है इसकी भी RCT कराओ, उसकी भी RCT कराओ, इस पर कैप चढ़ाओ, तो आपको ये नहीं पता होता है कि अचानक से क्या हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार लोगों को पता भी नहीं होती है। तो कोई भी आप सॉफ्ट या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करें और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, वो भी आप जिसमें कोई एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज़ के ना हो, जो दांतों को सिर्फ क्लेंस करे सॉफ्टली। सो ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
किस चीज़ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ टिप दे दो। ਤਾਂ फ्लोराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट माना गया है दांतों में, जो कि कीड़े लगने की कैपेसिटी को बहुत कम करता है। तो आप फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे कंसिडर किए गए हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट भी लेते हैं, हर टूथपेस्ट में जो उनके एक क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी में सेम होती हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे आपको ठंडे गर्म की शिकायत है, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे आपके इनिशियल लेवल्स में कीड़ा लगना शुरू हुआ है, तो ये ऐसी कंडीशंस हो गई जिनके लिए स्पेसिफिक चीज़ें हम रेकमेंड करते हैं। पर इन जनरली डे टू डे लाइफ में आप कोई भी फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। 2-3 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਔਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ केयर कर सकिए। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसमें स्मोकिंग का एक होता है कि जितने भी हमारे स्मोकर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत सिग्निफिकेंटली लें, क्योंकि कई बार आप उनके मसूड़ों में भी देखेंगे तो उनके मसूड़ों का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि निकोटीन एक सब्सटेंस होता है स्मोक में, जिसका कंजम्पशन करने से काफ़ी मसूड़ों पे भी फ़र्क पड़ता है एंड आपके लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि पैंडमिक की स्थिति है, तो अगेन जब तक कोई वैक्सीन उस तरह से डेवलप होकर नहीं आती है, आपने खुद का ही बचाव करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को एक काफ़ी अच्छे लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करें, प्रॉपर स्लीप लें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, और हरी सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा करें जितना हो सकता है, और ख़ुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप मेडिकल डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या आपके किडनी डिसऑर्डर्स हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो रेगुलर मॉनिटरिंग उनका बहुत ज़रूरी है कि आप उनका जो मेडिकेशंस हैं वो टाइम पे लें। आप अपने डॉक्टर से ये पूछें कि किस मेडिकेशन का किस तरह से असर पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक तरह से आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, तो जिससे ओवरऑल एक आप अपने आप में एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी फील करेंगे कि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो आपका खाना पीना है उसमें अगेन आप बेसिक फूड्स के ऊपर, लाइक हम कहीं भी गूगल कर सकते हैं बेसिक फूड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका कंजम्पशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें वर्सेस एसिडिक, क्योंकि एक एसिडिक फूड जो होता है वो कई बार पेट में जाकर भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स देता है, जैसे हमें खट्टी डकारें जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी खट्टी डकारें आपको जब आती हैं तो वो जो एक एसिड मुंह में थोड़ी देर के लिए आता है वो भी दांतों के ऊपर काफ़ी ख़राब असर डालता है। तो डैमेज प्रोलॉन्ग्ड होता है, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत छोटी छोटी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो हम घर पे रह के कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। पैंडमिक की स्थिति है इसलिए नहीं, पर हमेशा से और आगे हमेशा भी आप अपनी डेंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपने एक रेगुलर मेंटेन रखना है, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो आप घर पे रहकर नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी डेंटल रेगुलर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसे भी आपका कंफर्ट लेवल हो उस तरह से हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जानकारी ले सकते हैं कि वो किस तरह के प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, क्या चीज़ें वो क्या मेजर्स ले रहे हैं। जी ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਟਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।